जी, होपफुली आप तमाम लोग मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे और प्रॉबली स्क्रीन भी आपके साथ शेयर्ड है जो ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं. इज़ दैट ओके? यस सर. ओके. आज हमारा गोल जो है वो बेसिकली हम एक ट्रांसलेटर लिखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा. और ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट होगा और ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिस बनेगा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें इस तरह के टास्क होंगे मोर और लेस. सो दिस विल गिव यू क्विक स्टार्ट हाउ कैन यू टारगेट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये जो हम कोड अभी आपके साथ शेयर करेंगे और सारा हम गो थ्रू करेंगे, ये बेसिक कोड है. ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के एतबार से ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कोड आई विल गिव यू रेफरेंसेस जिसमें यही जो चीज़ है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से लिखी हुई है. और देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम दिस कोड टू अ मोर काइंड ऑफ एफिशिएंट कोड. ओके, so basically what we are going to do today is English to French translator. Okay, और ये जी हसनैन सर प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने टोकनाइजेशन तो कर ली थी शुरू में, जिसको हमने डिलीवरेबल 1 कहा था. जी जी. उसके बाद हमने अपने अपने प्रोजेक्ट डिसाइड भी कर लिए थे, लेकिन उसके आगे आपने कोई डिलीवरेबल असाइन नहीं किया. तो हम जी क्या करेंगे, कोई डिलीवरेबल आएगा या हम नहीं जी, अभी इंशाल्लाह इवैल्यूएशन होगी. मैं आपको वक्तन फ़क्तन लेक्चर में भी बताता रहा हूँ कि नाउ यू विल बी गिविंग योर फाइनल इवैल्यूएशन. और बीच में छुट्टियाँ ही थी, उससे पहले भी मैंने कहा था कलेक्ट योर डेटा एंड सो ऑन. आई वाज नॉट सपोज टू गिव यू रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस पे आपने डिलीवरेबल जमा करवाने थे. सो बेसिकली content wise I guess there are only two more topics that I'm going to cover in this class. One is text generation methods, and another topic is transformers, basically dynamic embedding. And after that, I guess the content from my side will be more or less closed. And from then onwards, I will be taking your presentations on the projects and I will be evaluating your projects. So roughly you have only this week. After that, you will be having your projects being evaluated in a sequential manner. Okay? Right. Thank you. Great. So English to French, we are going to convert that. Let me show you a data set that we are going to work with today. So it's a kind of a lengthier file. So you can see this is English and this is corresponding French. English corresponding French. स्टार्ट में आप देख रहे हैं कि वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं. उसके बाद सेंटेंसेस शुरू हो गए हैं आई सी, और then as you move on in this file you will be having lengthier sentences. For example, if you go there, he broke the door open. This is the French translation. This is the French sentence according to it, and so on. So that's the file we will be working on today for. So this is, by the way, this is also a format of training data when you want a many-to-many kind of mapping. Okay.
Later on, we will see even if you want to build a question answer session, you will require the same kind of data in the same format. If you want to build a chatbot system, you need the same kind of format for the training data, but that's the training data in this particular format. Is that okay? Yes? Okay. And that's publicly available. I have just taken it from one of the benchmarks available. Okay, that's publicly available. Okay, so what we are going to do here is basically we are going to build an encoder, and we are going to build a decoder. Both encoder and decoder, both are recurrent neural networks, individual independent recurrent neural networks. The only connection is encoder will be giving inputs to decoder, but the weights of decoder ये इसके अपने हैं. Decoder एक खुद साख्ता नेटवर्क है, encoder एक खुद साख्ता नेटवर्क है. So अगर मैं high level picture बनाऊं तो encoder takes an English sentence, generates its representation. You can call it as a feature representation. Decoder takes that feature representation and generates a French sentence. शोर की वजह से इधर से होंगे. ठीक है जी, is that okay? So that's the basic idea. So let's dive into some details. Let's build an encoder. An encoder is a recurrent neural network xi at time 1. xi is a word of English sentence, and this is the first word. I is the sentence number in our training data, ith sentence, and so xi represents actually the jth word of ith sentence. Make sense? Okay, so that goes here. It generates an output which is h1. And then it goes there. Also, it may generate something, maybe there is some layers here, and it may generate some output as well. Okay. So is this fine now? Yes. This one? Okay. So this is yi1 hat. And this h1 goes here, then we have xi2. It gives me h2 and maybe some layer here. And this computes basically yi2 hat. And by the way, these are also h1 and h2s, okay? And then here we move on, and finally we saw xi ti, where ti represents the total number of words in ith sentence. Okay, so that, and this generates, let me call this as hti, and this thing, and this is yiti. Okay, is that fine? That's our encoder. अब आप इस इनकोडर, अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, ये आउटपुट लेयर जनरेट करने वाली शेप क्या होगी, दैट्स योर डिसीजन. यू कैन डू इट. बट होगा ये कि हर सेंटेंस जो है, रिगार्डलेस ऑफ कि उस सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, द इनकोडर विल बी अप्लाइड ऑन टू द सेंटेंस. ओके,
अच्छा, नॉर्मली होता ये कि when we talk about decoder takes this particular representation as input. So here I'm going to draw a decoder, okay, and then it takes start of sentence token as an input. So come on, I mean, start generating the sentences, and then it generates some output. Let me call this output as zi1, okay, and then at the next time step it gives this h. Let me call this as hz1, and then this is given as input to this one. So पिछले टाइम स्टेप पे आपने ये फ्रेंच का लफ्ज जनरेट किया था, गिवन दैट अब नेक्स्ट क्या होगा? यस, सो नाउ द डिकोडर विल मूव ऑन एंड इवेंचुअली at some time it will generate end of sentence token and there will stop translation, okay, and अब जो ये generate करेगा that will be input to here, जो ये generate करेगा that will be input to here and so on, okay. अब अगर हमारे डिकोडर ने ये जनरेट किया है तो यहां पे एक्चुअल वर्ड क्या था जो होना चाहिए था एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग? एक्सक्यूज मी, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कोई एक्चुअल वर्ड भी तो था ना. अभी मैंने आपको फाइल दिखाई है कि ये अगर इंग्लिश है तो इसके अगेंस्ट ये फ्रेंच होगी. तो हमारे डिकोडर ने एक प्रेडिक्शन दी कि यार फ्रेंच में ये लफ्ज होना चाहिए, लेकिन एक एक्चुअल भी है जो ट्रेनिंग में है. So that actual word, let me call this as hat, और जो actual है zi1, इनके दरमियान loss compute होगा, yes, and that loss will be computed time to time, and a total loss will be computed at the end, और उस loss के एतबार से back propagation होगी और decoder और encoder दोनों के weights update होंगे. Make sense? That's a big picture. Any questions? इसमें काशिफ ये जो वाई आईज हैं जो ऊपर Yes. से, इनका क्या रोल है? अभी तक कोई रोल नहीं है. ठीक. अभी थोड़ी देर बाद मैं इनका रोल आपको वाज़ेह करता हूँ. अभी तक इनका कोई रोल नहीं है. ओके. यानी अभी तक ये these are just throwable. Can we do what? Yeah, we are going to dry run the whole thing in the code. So for example, let's take a sentence. So tell me which sentence. I have to find out how are you. Sorry? I'm not your enemy, let's say. Well, उसकी कोई और होगी, वो भी शायद इधर होगा. I'm not your enemy. So first of all, obviously ये जो sentences हैं इनके ऊपर tokenizers चलेंगे. ये जो हर sentence जो है वो tokenized form में आके word का sequence के तौर पे होएगा, ठीक. Then we will be having I am not your enemy. Then we will be having I going inside the network. It is generating some representation of I. जी हसनैन. एक्सक्यूज मी सर, ये फाइल में मल्टीपल सेंटेंसेस एक जैसे ही नजर आ रहे थे. हाँ, वो कई दफा आगे ट्रांसलेशन डिफरेंट है. जी, कई दफा ऐसा होता है कि एक आई मीन दिस इज नॉट 1-to-1 मैपिंग. लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि एक वर्ड को, एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मल्टीपल ट्रांसलेशंस. ठीक है सर, यहाँ तो समझ आता है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, जिस तरह हमारे नेटवर्क्स काम करते हैं, यस, तो जो नेटवर्क हम यूज करेंगे नॉर्मली, तो उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल टारगेट्स रख सकें. हम ये कैपेबिलिटी डाल सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग से. और नॉर्मली जब जनरेशन की जाती है ना, जब फॉर एग्जांपल आपने एक बुक राइटर लिखना है जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट करे, तो वहाँ पे गोल ये नहीं होता कि द बेस्ट पॉसिबल सेंटेंस आप लेके आए.
वहाँ पे गोल ये होता है कि सैम्पल करें आप अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला सेंटेंस होगा या ये वर्ड होगा, प्रोबेबिलिटी इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला वर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन यू पिक अ वर्ड एंड दैट एक्चुअली गिव डाइवर्सिटी इन जनरेशन। अगर आपका गोल यही हो कि मैंने बेस्ट पॉसिबल सेंटेंस उठाना है, देन इट विल पिक द बेस्ट पॉसिबल सेंटेंस। अब ये रिक्वायर्ड है कि आपने जनरेशन करनी है, डाइवर्स किस्म की जनरेशन करनी है, या आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन लेके आनी है। इस केस में अगर आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन लेके आनी है, आई मीन यू कैन कम अप विद, आई मीन ये सारी डिफरेंट किस्म की ट्रांसलेशंस हैं। अब नेटवर्क लर्न करेगा कि बेस्ट जो है ना वो ट्रांसलेशन क्या है इसकी। सो वी शुड गिव, एक्चुअली आई एम नॉट योर एनिमी, इसके मल्टीपल ट्रांसलेशन अगर अवेलेबल हैं तो वो हमें देने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। Okay, so this is I, then we have the same network, we give M, then we have same network, we give I'm not, sorry, और टोकनाइजर की गेम है वो। टोकनाइजर आई एम को एक टोकन कहता है या आई और एम को तोड़ के दो टोकन्स बनाता है, दैट इज द गेम ऑफ योर टोकनाइजर। अब हो सकता है आई वो जो सिंगल वो कोड होता है और एम मे बी दैट्स वन टोकन, दीज आर टू डिफरेंट टोकन्स। टोकनाइजर जैसा लिखेंगे वैसा होगा। आई एम अज्यूमिंग दीज आर टू, और ये हाँ जी हो जाते हैं, स्पेसी में करें आप होंगे। आई एम नॉट योर एनिमी, एनिमी के पता नहीं स्पेलिंग क्या होता है, एनिमी, एंड देन देयर इज सम फीचर वेक्टर आउट। यस जी, ये आप एग्जाम्पल का पूछ रहे थे, मैं आप अच्छा उधर से देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। देन ये डिकोडर जाएगा, ये कुछ ये अब डिकोडर है यहाँ पे ना, डिकोडर मैं एक और कलर का ले लेता हूँ जी। दीज आर सम रियल वैल्यूज। ये सर्कल जो हैं ये न्यूरल नेटवर्क है पूरा। ये मैं स्क्वायर्स बना रहा था, अभी मैंने जल्दी से सर्कल ड्रॉ कर दिया। Okay, now we will give this feature vector to another network, and इसमें हम सबसे पहले देंगे star of sentence start हो चुका, it will generate something, maybe wo or I don't know what word it generates, the first word, but there is an actual word that it should generate, और वो actual word है JE। yes, JE का कोई वन हॉट वेक्टर होगा जो इसने जनरेट किया है, उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दोनों वेक्टर्स हैं जो जनरेट हुए हैं, इनके दरमियान लॉस कंप्यूट किया जा सकता है। मेक सेंस? ओके, सो आफ्टर कंप्यूटिंग दिस लॉस वी गिव दिस here and it generates something। अब जो इसने जनरेट किया है और जो एक्चुअली जनरेट होना चाहिए था NE, उनके दरमियान लॉस कंप्यूट किया जा सकता है। एंड वी कीप ऑन मूविंग, हो सकता है ये जनरेट करता जाए, जबकि एक्चुअली यहाँ पे एंड ऑफ सेंटेंस आ जाना चाहिए इस जगह पे। यस, एंड ऑल दीज लॉसेस दे एक्चुअली आर कंबाइंड टुगेदर इन अ वन लॉस। सो अब आपने एक एग्जांपल देखी है, उस जो भी पैरामीटर्स थे इनकोडर नेटवर्क के और जो भी पैरामीटर्स थे डिकोडर नेटवर्क के, उन पैरामीटर सेटिंग्स में इतना लॉस है। वी वांट टू मिनिमाइज दैट लॉस, सो वी वांट टू अपडेट द पैरामीटर्स। सो विल बैकप्रॉप, वी विल टेक द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस विद ऑल द पैरामीटर्स ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर, and we'll update all the parameters of encoder and decoder, and we will see the next example, and we'll keep on moving. So this time we have y hat or h1 h2 Yes. decoder. इस वाले एग्जांपल में हम h1 y hat ये h1 जा रहा है ना, this is h1, this is h2, this is h3, whatever, that's a feature vector, that's a hidden state for recurrent neural network. It's a vector that represents a memory, और ये आपने डिसाइड करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी when you are building a neural network. Okay? नहीं, जितने वर्ड्स होंगे उतनी दफा ये अनरोल होगा, आपने एक न्यूरल नेटवर्क डिसाइड कर लिया हुआ है, वो रीअकर करेगा उतनी दफा जितने वर्ड्स हैं।
एक सेंटेंस के 4 वर्ड्स हैं तो 4 दफा रीअकर करेगा, एक सेंटेंस के 10 वर्ड्स हैं तो 10 दफा रीअकर करेगा. Should I move on? Great. Okay, now one more thing, which is called the attention mechanism. अर्लियर हमने किया ये था कि हमने सिर्फ फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन थी उस पर हम रिलाई कर रहे थे और फाइनल रिप्रेजेंटेशन हमने डिकोडर को दे दी. यानी जो आखिरी टाइम स्टैम्प पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सेंटेंस, एंड वी गिव दैट सेंटेंस टू द डिकोडर एंड आस्क द डिकोडर टू ओके स्टार्ट ट्रांसलेशन. इट इज वर्थवाइल थिंकिंग दैट ये जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, या मोर प्रिसाइजली अगर हमने कोई और लेयर भी अप्लाई की हुई है, तो ये जो आउटपुट्स हैं, maybe these outputs, they are valuable for generating different kind of translations. इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर मैंने फ्रेंच का एक ट्रांसलेशन जनरेट करनी है, तो वो ट्रांसलेशन जनरेट करने के लिए I need not to know the whole sentence. Maybe there are particular words in the English that are more important for generating that translation. So इसको कहते ही हैं वो कि I should attend only the relevant words in the English, not all of those. अब उसमें हम करते ही हैं कि ये जो सारे आपके पास आउटपुट्स हैं या जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच वर्ड एट ईच टाइम स्टेप, वी सेव देम. yi1 hat, yi2 hat, yiti hat, and we take a linear combination of these, where these alphas are just the real numbers. We take an average, you can call it a weighted average, and that is the final representation. Let me call this as H for decoder. That's the final representation for the decoder, and we give this for decoder. अब होगा ये कि जब डिकोडर एक वर्ड जनरेट कर रहा होगा, तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये एक वर्ड को जनरेट करने के लिए फ़र्क होंगे, अगले वर्ड को जनरेट करने के लिए फ़र्क होंगे, अगले वर्ड को जनरेट करने के लिए फ़र्क होंगे. दीज आर ऑल्सो द पैरामीटर्स लाइक अदर पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क. कौन सा लफ्ज़ जनरेट होना है, उसको किन लफ्ज़ों पे, इंग्लिश के किन लफ्ज़ों पे फोकस करना चाहिए, दीज वेट्स विल डिफाइन दोस, एंड दैट इज कॉल्ड अटेंशन मैकेनिज्म. Make sense? For generating a word, what words I should be attending. और ये जो parameters हैं, they are also learned in the training process, which I will be showing you shortly in the code. But you should know what do we mean by attention. Make sense? Yes? अब ये weights generate करने के there are multiple ways. एक तरीका जो हमने अभी कोड किया हुआ वो हम आपको दिखा देते हैं. Let's dive into the code because things will become much more concrete when we'll see the code. Yes? Okay. Right. Any questions so far? No? इसमें काशिफ ये जो HD है, it is a separate vector than the other output of the encoder, right? Encoder की एक और output भी तो है ना जो main. Yes. ये उसके अलावा है. Yes. Basically होता ही है कि इनकोडर को ना दो आउटपुट्स जारी होती हैं. एक आउटपुट जारी होती है इनकोडर की अपनी हिडन, और एक आउटपुट जारी होती है इनकोडर का अपना अपना जो वर्ड है ना, जो डिकोडर को जा रहा होता है. दिस इज डिकोडर, और डिकोडर ने कुछ जनरेट करना है यहाँ पे. यस, ठीक है. अच्छा, एक तो डिकोडर का अपना हिडन प्रीवियस जो मेमोरी आ रही है डिकोडर की, एक यहाँ पे जो इनपुट हम दे रहे हैं, जैसे SOS टोकन दिया था हमने, और फिर ये वर्ड दिया, फिर ये वर्ड दिया, दो इनपुट्स जा रही हैं. आप डिकोडर का एक यूनिट पकड़े ना, उसको दो इनपुट्स जा रही हैं, कि ये और एक ये. इन दो इनपुट्स का फंक्शन होता है ये वेट. ये वेट्स जो हैं दे आर कैलकुलेटेड यूजिंग दिस वन एंड दैट वन. ओके, ठीक है. सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि जो अब डिकोडर को जो इनपुट जानी है एनकोडर से, यस, it is something different than this HD. It is, right? it is like this one and that one as an input. और मल्टीपल तरीके हैं सारे.
यानी अब डिकोडर को हम दोनों को कंकैटिनेट करके दे दें, जो नई इनपुट आई है और जो प्रीवियस इनपुट्स हैं, इन तीनों को कंकैटिनेट करके एक वेक्टर बना लें, एवरेज कर लें. आई मीन देयर आर मल्टीपल वेज. सही है. ठीक है. हम अभी कोड में देखेंगे वी हैव कंकैटिनेटेड दीज थिंग्स, बट देयर आर मल्टीपल वेज. पीपल ऐड देम टुगेदर, पीपल टेक एवरेजेस, पीपल कंकैटिनेट. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज. एनी अदर क्वेश्चन? जी हसनैन. जी हसनैन, सवाल है आपका? है कि अभी जो आप जी सर, मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, हाँ जी. सर इसमें जो हमारे पास yi1 हैट, yi2 हैट, ये जो सारे के सारे जी. थे, ये इनकोडर में से निकले थे, इनकोडर के हर एक Yes. यूनिट में से निकले थे. These are encoder और outputs. हमने Yes. और डिकोडर को बजाय इसके कि हम सबसे आखिरी वाले में से जो आउटपुट निकली है वो दे दें, हमने सबके साथ कोई ना कोई वेट लगाया है, और जिनको हमने Yes. बिल्कुल कोई टेंशन नहीं देनी थी, हमने उनको 0 वेट कर दिया होगा, और बाकी को कुछ वेट देने के बाद हमने अब नया एचडी बना लिया है जो इनकोडर को जो डिकोडर को जा रहा होगा. Yes. तो ये जो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है एसओएस, उसकी जगह तो एचडी चला जाएगा, जो उससे आगे वाले यूनिट से नहीं. देखें. जो नेक्स्ट यूनिट होगा ना, उसका एक अपना एच होगा, एक अपना उसका इनपुट सेंटेंस जा रहा होगा. इन दोनों के फंक्शन के तौर पे नए अल्फाज निकलेंगे ना, सो एचडी दोबारा से कंप्यूट होगा. अगर आप कोड अभी थोड़ी देर में देखेंगे ना, थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लियर. एट एवरी टाइम स्टैम्प ऑफ द डिकोडर this representation is recomputed and that's why it is called attention. मैंने कौन सा वर्ड जनरेट करना है, वो जो वर्ड है जो मैंने ट्रांसलेट अभी जनरेट करना है, उसने इनपुट में किन किन वर्ड्स पे फोकस करना है, that is computed at every time step. सर मेरी एक्चुअल कंफ्यूजन यही थी कि जो हमारे अल्फाज हैं वो यूज हो रहे हैं इनकोडर में, लेकिन उनकी जो वैल्यू आ रही है वो कहीं डिकोडर से आ रही है. इनकोडर में कहीं यूज नहीं हो रहे, ये डिकोडर में यूज होंगे. इनकोडर ने अपनी आउटपुट्स निकाल दी, उसके बाद इनकोडर वेल है. डिकोडर जब ट्रांसलेशन करने लगेगा तब अल्फाज कंप्यूट करेगा. ठीक है, वो इसी के पास है. ठीक है. Yes. Encoder has no knowledge about alphas. Okay, got it. Okay, there are a lot of confusions, it looks like. Let's resolve all of them through the code. Okay. So, where should I be? जी मैंने डेटा फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर दी है, और ये जो कोड मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया. होपफुली यू आर सीइंग ऑल दैट कोड. यस, बाय द वे मैं इस कोड की सोर्स भी आपको बता दूँ. यानी आई हैव मॉडिफाइड दिस कोड फ्रॉम द PyTorch ओरिजिनल वेबसाइट. वहाँ पे ये एज अ ट्यूटोरियल दिया है इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामर्स के लिए. And I have modified this code. उन्होंने जो कोड यूज किया हुआ था, they were filtering data and they were applying a unidirectional encoder. I have modified, I have taken the raw data and I have deployed the bidirectional encoder. और bidirectional encoder deploy करने के लिए कोड में फिर जहाँ तब्दीली थी वो मैंने की थी. So that is more or less that's the code that I'm going to show you right now. You see that hopefully, yeah, this is sequence to sequence translation. If you go to this page, that is pytorch.org tutorials, intermediate sequence to sequence modeling translation tutorial. That's the complete code.
and complete explanation of the code that I'm going to give you right now. Yes, the only difference is I've modified the code and made it, the encoder was unidirectional, I have made it bidirectional. That's all. And making bidirectional and then applying attention was having certain troubles, and I fixed those in my code. Yes. Actually लोगों ने स्टैक एक्सचेंज वगैरह पे इसको बाइडायरेक्शनल करने की कोशिश की भी थी, तो कुछ से हो गया होगा, कुछ से नहीं. They were posting, so it took me a day and I have converted that. Anyways, so that's the basic source. If you want to go, you can see that each and every bits and bytes of the code are detailed explanations are available here. Yes. यार ये क्यों नहीं आ रहा? ये मैसेजेस ही करने थे, है ना? व्हाट्सएप ठीक है, ओ आ गया. ठीक है जी, सही है. ओके, सो okay, now you know the source of the code, so that if you miss something here, you can just refer back to that. I need some things, some packages to import. I have imported those. अगर आपकी डिवाइस यानी आपका जो सिस्टम है उस पर ऑलरेडी CUDA इंस्टॉल्ड है, यानी आपका GPUs लगे हुए हैं, the code will automatically shift everything to GPUs, so you need not to do an extra setting. So this is actually done here. अगर CUDA अवेलेबल है तो CUDA वाली सेटिंग कर दो, अदरवाइज CPU वाली सेटिंग कर दो. ओके, सो लेट्स सी if everything is available. Yeah, available. अब मेरे पास, मैंने आपको डेटा दिखाया था, मैं इसी में इसकी टोकनाइजेशन भी करूंगा, इसी में इसकी एम्बेडिंग्स वगैरह हर चीज़ आपके सामने इसी में बनेगी. सो जो डिक्शनरी है उसमें मैं स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन उसको इंडेक्स 0 दे रहा हूँ मेरी डिक्शनरी में, और जो एंड ऑफ सेंटेंस टोकन है उसको मैं अपनी डिक्शनरी में 1 दे रहा हूँ. ठीक, डिक्शनरी, आई मीन दीज आर 2 वर्ड्स इन माई डिक्शनरी टोकन्स. 0 इंडेक्स्ड एज स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, 1 इंडेक्स एज एंड ऑफ टोकन. अब मैंने एक क्लास बनाई है लैंग्वेज. इसमें जैसा कि आपको पता है ये कंस्ट्रक्टर है, ये जैसे दिस पॉइंटर होता है वो है नेम, जो भी क्लास मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है या फ्रेंच है. स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन उसका इंडेक्स ये है, ये डिक्शनरी, ये मेरी वोकैबुलरी बन रही है, वर्ड टू इंडेक्स मैपिंग. यस, सो ये 2 वर्ड्स तो मैं फौरी ऐड कर दूंगा, बाकी वर्ड्स जैसे जैसे मैं फाइल को गो थ्रू करूंगा मैं इस डिक्शनरी में ऐड करता जाऊंगा. और इंडेक्स टू वर्ड जो है ये इनवर्स मैपिंग है. ओके, सो नंबर ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर 2. ये क्या चीज़ है अभी देखते हैं इसको. और राइट नाउ मेरे पास 2 वर्ड्स जो है मेरी लैंग्वेज में आ चुके हैं. ऐड सेंटेंस, अगर मैं सेंटेंस ऐड करना है, मेरा बड़ा सादा सा टोकनाइजर है, स्पेस पे स्प्लिट कर दें. ऑब्वियसली आप अपनी अपनी लैंग्वेजेस में काम कर रहे होंगे तो आप अपना यहाँ पे टोकनाइजर डिप्लॉय करेंगे जो आपको टोकन्स रिटर्न करेगा. यस, यहाँ पे स्पेस पे मैंने, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, this is English, this is something that can be separated through spaces, that's why I've written this one. Your code may be hilariously different. You may have written your own tokenizer function, you might have called your own tokenizer on the sentence and gives you token. Either way, this is required to give you tokens in a list form and you आप उस लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करें. ये सवाल है बेटे आपका? ओके, ठीक है जी. सेल्फ डॉट एडवर्ड का फंक्शन ये आपके सामने है. अगर वर्ड जो है वो ऑलरेडी नहीं है तो ऑलरेडी जितने वर्ड्स हैं सेल्फ डॉट एन वर्ड्स, इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो, यानी ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अब जितने हो गए हुए हैं उससे अगला इंडेक्स जनरेट करो और उस इंडेक्स के अंदर जाके इसको प्लेस कर दो और जो टोटल वर्ड्स हैं उसको प्लस कर दो. मेक सेंस? ओके, देन अगर वो नहीं था, अगर ऑलरेडी था तो जस्ट जो उसका काउंट है वो इंक्रीज कर दें. सो वर्ड टू काउंट मीन्स ये वर्ड लैंग्वेज में कितनी दफा आया. मेक सेंस? ओके,
print all words, ये सारे words आप अगर print करना चाहें, you're good to go. Very simple class, I guess you understood. Yes? Should I move on? नहीं मिला तो ऐड किया है, काउंट 1 रखा है और मिल गया है काउंट Yes. Yes. उस word की frequency. और ये जो n words है, ये basically मेरे पास act कर रहा है dictionary का index. ठीक है, total number of words भी और array में index भी है. ठीक है जी. Okay, great. Next, language, मैं एक object बनाता हूँ. Language, उसमें मैं एक word ऐड करता हूँ, NLP, उसमें एक पूरा sentence ऐड कर देता हूँ. और अब मैं सारे print करता हूँ सारे word, तो ये मेरे पास आ गए होंगे. Yes, so ये एक छोटी सी आपके पास language की class जो है, it is working everything. Okay, great. ये डेटा को कुछ साफ सुथरा करने के लिए I've just picked that from Unicode में convert करना and so on. I do not know a lot of details of this, but this is some form of standardization जो Unicode में convert करता है and so on. You can go through that link and get an understanding what is happening, but this is some kind of normalization. और ये एक फंक्शन है जो एक सेंटेंस लेगा और उसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर देगा या कोई खास किस्म की फॉर्मेटिंग उसमें कर देगा. ओके, एंड देन अनदर आई हैव रिमूव्ड द अनवांटेड कैरेक्टर्स जो इस तरह के नहीं हैं, उनको रिमूव कर दो एंड सो ऑन. सम रेगुलर एक्सप्रेशंस, आवर सेकंड लेक्चर वर्क्स कंप्लीटली ऑन दैट. रेगुलर एक्सप्रेशंस, you can go and look back. So I'm going to normalize this string, you can see. So this is the normalized version. In this particular case, it has just removed the numbers, but you can see the formulae, they are much more general than that. आपने किस किस्म की normalization करनी है अपनी language में? Normalization करना चाहते हैं tokenization के बाद या पहले? You have to decide. And sometimes it happens कि normalization can lead to good results, but in several cases अगर normalize ना भी किया जाए, data को raw format में भी लिया जाए, the recurrent neural networks, they actually they tend to capture some good patterns out of it. लेकिन अभी तक की practice यही है, people try to normalize data and standardize data. Okay जी, read languages. क्या सर ये वाला? ये बाद में देख लीजिएगा. I mean, this is regular expression. I do not want to spend some time. ये और चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा. This is groups in regular expressions. ये \1, \2, \3 जो है. This is not simple. ये grouping होती है. Regular expressions के अंदर एक grouping होती है. ये grouping का format लगाया हुआ उन्होंने. This is not straight or \1. It has some other meaning. Okay. Read languages, lines. So open. I already have imported this open here from IO. So it will open my text file. Encoding ये है .read .script.n. तो ये read करके आपको दे देगा. एक लाइन जो है ना वो read करके आ जाएगी. ये read करके आ जाएगी. तो उसके बाद ये है ये कि ये दोनों जो यानी एक पेयर जो है ना वो टैब से सेपरेटेड है. That's how the format is there. So आप ये पेयर्स निकाल लें. ठीक है. For each line in lines, for each sentence in the line, जो / से separated है, उसको normalize करें and just pairs में add करते जाएं. Okay. And then input language, you can call input language. You can make a constructor. You can make an object. Output you can make an object, and you can return input language, output language. These are just objects for now. इनमें अभी तक कोई data नहीं है. And these are the pairs that has all the data. Yes. So let's see what this function does. Input, output, and pairs. And these are the pairs. Basically, it's array of arrays, list of lists, basically. So if I just say, for example, pair one, that is go, and the corresponding thing is that. So अगर मैं nothing, ये initialize कहीं से नहीं हो रहा, बस ये generate हो रहा है. हाँ जी. नहीं, ये P है, ये pairs, ये P है.
ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा, ये अंदर 2 नेस्टेड लूप लगे हुए हैं। फॉर ईच लाइन मैं लाइन में गया हूँ, उसको मैंने स्प्लिट किया है टैब से, और ये सेंटेंसेस यानी मैंने टैब से स्प्लिट करके फॉर एवरी लाइन आई स्प्लिट द लाइन थ्रू टैब, 2 वैल्यूज बनी, वो 2 वैल्यूज मैंने एक लिस्ट में डाली, ये लिस्ट्स जो हैं ये कंकैटिनेट होती जा रही हैं, एंड दैट इज हैपनिंग इन दिस नेस्टेड फॉर लूप। दैट इज काइंड ऑफ यस, पूरा सेंटेंस, दूसरा पूरा सेंटेंस, ये पहला पेयर था, ये पहला पेयर था ये जिसमें एक एक वर्ड था, उसमें जो भी ट्रांसलेशंस पड़ी हुई, अगर ये आप पहला देखें ना तो है ही ये, पहला देखें तो है ही ये, ठीक है। सो हमें नहीं पता क्या, बस हमें ये पता कि टैब सेपरेटेड है और हमने उठा लिए बस। ओके, सो दिस इज P0 मीन्स द फर्स्ट पेयर, और अगर फर्स्ट पेयर का मैं इंग्लिश उठाऊं तो दैट इज 0, और अगर मैं फर्स्ट पेयर का फ्रेंच उठाऊं दैट इज 1, और अगर मैं 500वें पेयर का या 5000वां पेयर, पता नहीं है या नहीं, 5000वें पेयर का अगर मैं फ्रेंच उठाऊं दैट इज दिस, 5000वें फ्रेम का अगर मैं सेंटेंस का पेयर का अगर मैं इंग्लिश उठाऊं दैट इज दिस। मेक सेंस? चलें आगे। सो फॉर सो गुड। प्रिपेयर डेटा, अब मैं पेयर्स लूंगा और अपनी लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैं अपडेट करूंगा, उनमें मैं वोकैबुलरी भी भरूंगा और सारा कुछ अपनी लैंग्वेज में। सो मैं इनपुट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लूंगा, आउटपुट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लूंगा, और मैं सारे पेयर्स लूंगा। अभी तक पेयर्स के अंदर है, पेयर जो है दैट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। अभी मैं इनपुट लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पॉपुलेट करूंगा, उसकी वोकैबुलरी बनेगी, पूरी लैंग्वेज बनेगी। मैं पेयर्स रीड करता जाऊंगा ना, तो मैं जैसे जैसे लफ्ज़ नए नए मेरे पास आते जाएंगे मैं अपनी वोकैबुलरी बढ़ता जाऊंगा। अभी तो अल्फा बहुत दूर है, अभी तो हम सिर्फ प्री प्रोसेस कर रहे हैं लैंग्वेजेस को, अभी हम उस पर इनकोडर डिकोडर वगैरह पे नहीं आए, अभी जस्ट प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। मैक्सिमम लेंथ, ये जिस तरह की हमने इम्प्लीमेंटेशन की है ये रिक्वायर्ड होगी, पूरे फाइल को गो थ्रू करने के बाद एक सेंटेंस जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी ये हमने निकालना है। दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर आवर इम्प्लीमेंटेशन लेटर ऑन। सो मैक्सिमम लेंथ फॉर नाउ इट इज 0, अदरवाइज वी विल कीप ऑन मूविंग। फॉर एवरी पेयर हम इंग्लिश पकड़ेंगे और वो सेंटेंस होगा उसको हम इंग्लिश में ऐड कर देंगे। अभी ऊपर आपने देखा था ये ऐड सेंटेंस, पेयर जो है 1 पकड़ेंगे उसको हम फ्रेंच में ऐड कर देंगे, और मैक्सिमम लेंथ देख लेंगे जो ऑलरेडी मैक्सिमम लेंथ है और जो अब लेंथ्स आई हैं उनमें से कौन सी है। यस, ओके, सो दिस विल गिव अस, and it will take maybe some time, this will give us input language, output language, populated objects, maximum length. ऐड वर्ड का चेक करता था, ऐड सेंटेंस के अंदर ऐड वर्ड कॉल हुआ है ना, yeah, so add some for every word, add word actually checks all these things. फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, होने दें। ठीक है जी। मैक्सिमम लेंथ 59, जो हमने पूरा डेटा देखा है इंग्लिश फ्रेंच, इनमें से जो सब लंबा तरीन सेंटेंस था अब तक वो 59 का था। दिस इज जस्ट रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन जो ये वाली की हुई है। लेटर ऑन जो मैं आपको एक इम्प्लीमेंटेशन का रेफरेंस दूंगा उसमें मैक्सिमम लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। इनपुट लेंथ में कितने वर्ड्स हैं इतने हैं, आउटपुट लेंथ में टोटल वर्ड्स कितने हैं इतने हैं। आउटपुट लैंग्वेज प्रिंट ऑल वर्ड्स, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये मैं तो नहीं कर रहा, ये टाइम लेगा। सो यस, लास्ट टाइम किया था। सो ओके, रैंडम डॉट चॉइस पी, रैंडम डॉट चॉइस पी मीन्स 22,000 कुछ है शायद, या 29,481। नहीं फर्क है, एक की वोकैबुलरी फर्क है, एक की वोकैबुलरी फर्क है। सेम होना क्यों जरूरी है, सेम क्यों? इंग्लिश के 20,753 वर्ड्स हैं। हाँ, इस फाइल के अकॉर्डिंगली, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली। ट्रांसलेशन है, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स फर्क है, मतलब ज्यादा लफ्ज हैं, कई वो सिनोनिम्स हैं।
नहीं हमने एक वर्ड को दो दफा ऐड नहीं किया नहीं किया। मैं अपने अपने यूनिक वर्ड जो है यहाँ पर था बड़ा यहाँ यस यस यस। फ्रेंच रिकॉर्ड वो तो सेट ऑफ अल्फाबेट ज्यादा होने लगे फ्रेंच या नहीं, अल्फाबेट अगर थोड़े भी हों तो आप वर्ड्स बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। हाँ, अल्फाबेट तो अगर बाइनरी भी हो ना तो लैंग्वेजेस बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ाते हैं अक्सर। 2 अल्फाबेट 0 1 उससे सारा कुछ मैप हो जाता है। Should I move on? Yes. So नंबर ऑफ वर्ड्स का ज्यादा होना, ये नंबर ऑफ अल्फाबेट के ज्यादा होने पे इसका इन्हिसार है नहीं। अल्फाबेट इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं ना उस पे इसका नहीं है। रैंडम डॉट चॉइस, ये चॉइस का बड़ा खूबसूरत फंक्शन है रैंडम के अंदर। ये आपके जितने भी एक अरे है उसमें आप चॉइस कॉल कर दें तो उसका कोई रैंडम एलिमेंट उठा के डिस्प्ले कर, रैंडम एलिमेंट उठा के रिटर्न कर देगा। यस। सो ये मैंने कोई रैंडम पेयर जो है ना ये अब मैंने डिस्प्ले करने लगा हूँ। अभी जो डिस्प्ले होगा वो फर्क होगा जो इससे प्रॉबेबली, क्योंकि रैंडम है। ठीक है, अगली दफा करूंगा तो कोई और उठा के लाएगा। सही है? ओके ग्रेट। Okay, these are my pairs. Now the story begins from here. ठीक है जी, बड़े ध्यान से इनकोडर और डिकोडर दोनों के जो फॉरवर्ड फंक्शंस हैं उनको हमने गौर से देखना है। These are the forward functions that are doing everything. ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होंगे जब हम ये ऑब्जेक्ट्स जो है इन पे हम यानी इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया करेंगे। ऑब्जेक्ट कॉलेबल होते हैं पाइथन में। जब ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो बेसिकली आपका उसका फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल होता है। ओके, इनकोडर एनएन मॉड्यूल से इनहेरिटेड है। वोकैबुलरी साइज, हिडन साइज, ये हिडन साइज अभी ये वैल्यू है कि अब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रखने हैं, रिकरेंट यूनिट्स कितने रखने हैं। ओके, ये अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एनएन मॉड्यूल वाले को, बट हियर इज द थिंग, इसके अंदर एक पैरामीटर है हिडन साइज, उसमें हिडन साइज आ गया। एम्बेडिंग लेयर है, उसमें वोकैबुलरी साइज इनटू हिडन साइज, यानी जो एम्बेडिंग जनरेट होगी ये आप यूं समझ लें, ये जो हिडन साइज है वक्ती तौर पे, अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो दिस हिडन साइज इज बेसिकली द एम्बेडिंग कितने लेंथ की होगी, दैट इज द टोटल फीचर लेंथ। दोबारा से शुरू करता हूँ। एनएन मॉड्यूल सुपर क्लास है, सुपर क्लास है। पाईटॉर्च के अंदर अगर आपने कोई उसके, हाँ ये इनकोडर आरएनएन जो इनहेरिट कर रहा है एनएन डॉट मॉड्यूल से, दिस इज इनहेरिटेंस सिंटैक्स इन पाइथन। और ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर की अभी इंप्लीमेंटेशन जारी है। सही है? अभी ये जो मैडिंग मैंने बनाई है, मैं कोई प्री ट्रेनिंग मैडिंग नहीं ले रहा, एवरीथिंग इज रैंडम, और ये लर्न होगी एज वी गो। अगर आपके पास कोई प्री ट्रेनिंग मैडिंग्स हैं, वर्ड टू वेक है, कुछ और है, यू कैन कॉल nn.embedding.from pre-trained, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंड यू कैन बी वेरी गुड टू गो। लेकिन याद रखें जब फ्रॉम प्री ट्रेंड आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका लर्नेबल पैरामीटर फॉल्स होता है, उसको फ्रीज कहते हैं, फ्रीज पैरामीटर। अगर आपने वहां से आगे मजीद उसकी ट्रेनिंग भी करानी है ऑपरेशन, तो आपको फ्रीज फॉल्स करना पड़ेगा। जी आपका सवाल है? फंक्शनल, ये हमें सॉफ्ट मैक्स और इस तरह की कुछ ना चीज़ें चाहिए होगा, आगे चाहिए होगा। यानी जैसे NN है ना, न्यूरल नेटवर्क, ये एक पैकेज है, ये हमें सॉफ्ट मैक्स, TANH, ReLU इस तरह की सपोर्ट्स देता है। इसी तरह जो F है ना, ये फंक्शनल है, ये भी उसी तरह की, ये जो ऊपर F है इसी की बात कर रहे हैं ना आप, ये वाला जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना मेन उसका फंक्शन कॉल वाला कोर्स है, यहां बहुत सारे बस ओके साथ में कोड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे, ठीक है। बेहतरीन। लास्ट लेक्चर लिया था आपने, उसमें मैंने सेल्फ को बताया था वैसे। इट इज काइंड ऑफ अ दिस पॉइंटर, इट्स काइंड ऑफ अ दिस पॉइंटर, लेकिन पाइथन में चूंकि पॉइंटर्स नहीं है तो इट्स वर्थ लाइक सेल्फ ऑब्जेक्ट देना, यस। ठीक है, चलें जी आगे। ओके, एम्बेडिंग लेयर, दैट्स अ वेरिएबल, और यहाँ पे जो हिडन साइज है, इट इज एक्टिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ द एम्बेडिंग। लाइक अगर मैं 128 भेजता हूँ
तो जो हर वर्ड जो है वो 128 लेंथ के वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट होएगा। यस, उसके बाद मैं एक GRU यूनिट बनाता हूं। GRU यूनिट फीचर वेक्टर जितने साइज का है उतनी इनपुट लेगा और आउटपुट जनरेट करेगा उसी साइज की। अब इस साइज को आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, पीछे से जो भेजेंगे जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। लेकिन मैंने जो यहां पे किया हुआ है वो ये कि जो फीचर वेक्टर का साइज है और जो नंबर ऑफ रिकरेंट यूनिट्स हैं वो सेम है। आप इनको चेंज कर सकते हैं। मेक सेंस? चेंज कर सकते हैं। ओके, बैच फर्स्ट ट्रू, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। बाई डायरेक्शनल ट्रू, दैट्स द चेंज इन दिस कोड, एंड ड्यू टू दिस चेंज देयर आर अदर चेंजेस इन द कोड। बाई डायरेक्शनल मीन्स दिस बाई डायरेक्शनल, आई मीन दोनों साइडों से करेगा और एक टाइम स्टेप के ऊपर 2 आउटपुट्स आ रही होंगी बजाय एक के, एक फॉरवर्ड आउटपुट, एक रिवर्स आउटपुट। रिमेंबर दैट, वी डिस्कस दैट इन और प्रीवियस लेक्चर। जी अदीला। सर हम यहाँ LSTM भी यूज़ कर सकते थे। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर हम यहाँ LSTM भी यूज़ कर सकते थे। जी यहाँ पे LSTM भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे GRU भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सादा RNN जो सिंपल यूनिट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आइदर वे। तो सर हम LSTM और GRU में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन सा बेहतर है? नो वे ऑफ डिसीजन, दैट्स काइंड ऑफ अ हाइपर पैरामीटर। मैं आपको जनरल थोड़े से कमेंट्स दे देता हूँ जो एंड्रू वांग ने दिए थे अपने लेक्चर्स के अंदर। ही सेड के GRU इज रफली simpler in terms of the total number of parameters it has. So it has better generalization as compared to LSTMs, but that doesn't mean it is better than LSTM always. The choices are mixed among the practitioners. ठीक है, थैंक यू सर। Okay, so GRU hidden size, अब ये आप चेंज कर सकते थे, but just for simplicity I have made that same thing, and that's my constructor जो मैंने पीछे से कॉल किया वो मुझे मिल गया। फॉरवर्ड जो है, अब यहाँ पे मैंने मजीद सिंपल किया हुआ है। जो एक सेंटेंस का एक वर्ड आता है फॉरवर्ड के अंदर, पूरा सेंटेंस नहीं आता। सो एक वर्ड फिर अगला वर्ड फिर, यानी इनकोडर जो है वो वर्ड बाय वर्ड मैं खुद लूप के जरिए इसको अनरोल करता हूँ। आप इसको बगैर लूप के अनरोल कर सकते हैं। अगर पूरा सेंटेंस भी दे देंगे, लिस्ट ऑफ इनपुट्स भी दे देंगे, इट विल अप्लाई टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड लेकिन ड्यू टू सिंप्लिसिटी मैं हर सेंटेंस पे जाऊंगा इनपुट के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उसके मैं एक वर्ड को पकड़ूंगा और एक वर्ड पे मैं ये मॉडल कॉल करूंगा और इनकोडर जो है वो स्टेप बाय स्टेप अनरोल होता जाएगा। यस, सो कंसिडर दिस इनपुट just as a single word rather than a sentence. Yes? और ये लास्ट टाइम आपने सवाल किया था कि इनपुट कीवर्ड है एंड सो ऑन, क्या करें? ठीक है जी। दिस हिडन इज अ प्रीवियस हिडन, जो H जो चारी होती है इनकोडर को, दैट इज सबसे पहले एम्बेडिंग। ये इनपुट जो है इसकी एम्बेडिंग उठाएगा, यानी ये इनपुट एक वर्ड है तो इसकी एम्बेडिंग पकड़ेगा, एक वेक्टर लाएगा और उसको इस फॉर्म में कर देगा कि वे बैच पहले आ जाएगा और जिस फॉर्म में इसको रिक्वायर्ड है, दैट्स व्यू फंक्शन। रीशेप हो रहा है, दैट इज काइंड ऑफ रीशेप। यस, ओके, दैट्स एम्बेडिंग। उसके बाद आप GRU अप्लाई करेंगे इस एम्बेडिंग पे और आप हिडन लेके जाएंगे और ये आपको एक आउटपुट और आपको एक हिडन देगा। यस, मेक सेंस? और ये आउटपुट और हिडन आप रिटर्न कर देंगे एंड दैट्स हाउ इनकोडर वर्क्स। इनकोडर इज एक्सट्रीमली सिंपल। यस, मेक सेंस? और यहां पे ये भी देख लें कि जो GRU की आउटपुट है वही हिडन भी है, वही आउटपुट भी है। ऊपर मैंने कोई और लीनियर लेयर वगैरह नहीं लगाई, वो जो बादल से हम बनाते होते हैं। मेक सेंस? ग्रेट, दैट्स द इनकोडर। ये इनिट हिडन इसका फंक्शन है। अगर आपने हिडन स्टेट को इनिशियलाइज करना है तो सबको 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब ये कॉल होगा तब मैं मजीद आपको बता दूंगा। इफ इनकोडर इज क्लियर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स डिकोडर बिकॉज डिकोडर विल टेक सम टाइम। इनकोडर इज ओके? यस, ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू डिकोडर। डिकोडर RNN, याद रखें अटेंशन मैकेनिज्म भी इसी में लगना है। सो बड़े ध्यान से। डिकोडर अगेन
इनपुट है, इसका हिडन साइज, वोकैबुलरी साइज, मैक्स लेंथ, इसको मैक्स लेंथ चाहिए होगी, वो जो मैक्स लेंथ हमने शुरू में कंप्यूट की थी, एंड मे बी ये इसने कॉल किया अपने उसको सुपर को, एंड हियर वी गो सेल्फ डॉट हिडन साइज, सेल्फ डॉट आउटपुट साइज इज द वोकैबुलरी साइज। आउटपुट साइज मतलब इसने आउटपुट क्या करनी है, उतनी करनी है जितना आपका वोकैबुलरी का साइज है, फ्रेंच वोकैबुलरी का जितना साइज है, ठीक है, दैट्स द आउटपुट साइज। मैक्स लेंथ एम्बेडिंग सेल्फ डॉट आउटपुट साइज विच इज सिंपली द vocabulary size of the French, and hidden size. Again, here hidden size is being used as number of features. Yes? Okay. Then we move towards a linear layer. यहाँ पे मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि ये इसी सीक्वेंस में होनी है, मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं अटेंशन कह रहा हूँ, और ये अटेंशन क्या है, सेल्फ डॉट हिडन साइज बाय 2 इनटू सेल्फ डॉट मैक्स लेंथ। सो ये बेसिकली एक लेयर है, ये जिसको मैं अटेंशन लेयर कह रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये अप्लाई कब होनी है, ये हमें फॉरवर्ड के फंक्शन में जाके पता चलेगा, बट राइट नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड अ लेयर which has total 59 units because max length, its output is max length, and each unit is receiving 2 times the hidden size. Yes, so it actually gives 59 numbers out. And by the way, these 59 numbers are actually the alphas. और अब आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हमने मैक्स लेंथ क्यों सेव की थी। सारे अल्फाज जनरेट कर दें, अगर थोड़े लफ्ज हैं तो बाकी अल्फाज दे विल बी जीरो और वी कैन जस्ट थ्रो देम आउट, ठीक है, बट थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी विल गो इनटू द फॉरवर्ड फंक्शन। लीनियर लेयर इज दिस वन, ओके। Then we have attention combined layer, that is also a linear layer, and that layer takes 3 times the hidden size. So each unit takes, the total number of inputs are 3 times the hidden size, and it generates the total number of units are actually hidden size. So let's say hidden size is 100. So we have 100 units, and each unit is receiving 300 inputs. So this actually gives 100 outputs. Make sense? That is attention combined layer. ये न्यूरल नेटवर्क में लगनी किस जगह पे है, फॉरवर्ड फंक्शन ये बताएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये जो कंस्ट्रक्टर में जिस सीक्वेंस से ये वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, दे हैव, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यस, ओके। Then we have GRU, hidden size by hidden size, and then finally we have a linear layer which is hidden size by output size. Yes, and these are all the variables that are here. Okay, now go to the forward function. If you understand this forward function, these are just 6 or 7 lines. You understand attention and everything. Okay. Self as it is. Input is again one word. Hidden is the hidden state of, it requires encoder outputs as well. Why? Yes, decoder में encoder outputs आएंगी तो वो attention apply कर सकेगा। So एक sentence को देखने के बाद जो सारी outputs हैं per word, that requires that array, ताकि ये जब अपने अल्फाज कंप्यूट करे तो जिस लफ्ज को ये ट्रांसलेट करना चाह रहा है उसके एतबार से ये उन लफ्जों में से चूज कर सके, अटेंशन अप्लाई कर सके। यस, सो इट रिक्वायर्स एनकोडर आउटपुट्स एज वेल। ओके, एम्बेडिंग लेयर, अगेन इनपुट व्यू। सबसे पहले अब हम अटेंशन अप्लाई करने लगे हैं। जरा ध्यान से हम करेंगे ये कि जो हमारी इनपुट है, सारे में ये आपके सवाल का जवाब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। जो हमारी इनपुट वर्ड है, ये जो हमारा इनपुट वर्ड है वो, और जो हमारी हिडन है, हिडन स्टेट जो डिकोडर को हिडन आ रही है, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं आपस में। सही है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं
कंकैटिनेट करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे। जब ये कंबाइन होंगे तो एक यानी कंकैटिनेट होंगे तो जो टोटल वेक्टर की लेंथ बनेगी दैट विल बी 2 टाइम्स द हिडन साइज। यस, एम्बेडिंग भी हिडन साइज की है और हिडन खुद भी हिडन साइज हमने एक वेरिएबल रखा हुआ जो फिक्स है, हम चेंज कर सकते थे, वी कैन प्ले विद द वेरिएबल्स, बट राइट नाउ हिडन साइज इज अ फिक्स, हिडन साइज इज वन नंबर दैट इज सेम एवरीवेयर। So embedding is of hidden size. Let's say hidden size is 100. Embedding 100, hidden vector itself has 100 dimensions. So 100 into 100, 200. That's a vector 200. And this vector, this 200 times vector, has to pass through this layer, and it will generate 59 numbers. These are my alphas. So I give these 200 ka vector to first unit, I give the same vector to the second unit, and so on. And it gives me alpha 1, alpha 2, alpha 3, and so on. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पैरामीटर्स कहाँ हैं? ये जो लीनियर लेयर है इसके हर यूनिट के अपने पैरामीटर्स हैं, W1, W2 and so on. ये जो पैरामीटर्स हैं ये लर्न होंगे, इन पे भी ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा। और अभी आप गौर से देखें कि जो आपकी अटेंशन के वेट्स जो आपके कंप्यूट हो रहे हैं वो डिकोडर में इनपुट क्या जा रही है, दोनों इनपुट्स के लिहाज से कंप्यूट हो रहे हैं। इस वक्त डिकोडर की इनपुट क्या है, उसकी मेमोरी क्या है और उसको करंट वर्ड कौन सा जा रहा है, उसके लिहाज से अल्फाज क्या होंगे, वो अल्फाज अप्लाई होंगे डब्ल्यूज इनकोडर आउटपुट्स के ऊपर और रेलेवेंट वर्ड्स जो हैं वो पिक होके एवरेज आउट होके आएंगे। और अदीला, इसमें आपने जो सवाल किया था GRU या LSTM, ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है इसने एक्चुअली LSTMs और GRUs दोनों को सॉर्ट ऑफ नलिफाई कर दिया हुआ है। ये लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को बहुत खूबसूरती से मैनेज करता है ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है। LSTM और GRU जो है ना ये लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दीज अटेंशन मैकेनिज्म्स दे आर नो लॉन्गर इन दैट काइंड ऑफ यूज जिस यूज के लिए वो आए थे। ओके, थैंक यू सर। Is that okay? Alphas are computed. Alphas are computed. Yes? Okay. अब देखते हैं जी नेक्स्ट। ये सॉफ्ट मैक्स में इसलिए लेता हूं कि ये जो सारे अल्फाज हैं all these alphas they are weights. I mean इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, और ये सॉफ्ट मैक्स है ये इंश्योर करता है द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 100%। यानी अगर कोई 1.1 है दूसरा 0.2 है तो ऑल सम इज 1। यस, सो द सम ऑफ द वेट्स ऑफ दीज अल्फाज मस्ट बी 1, द सम ऑफ अल्फाज इज 1। यस, बिकॉज दीज आर कंट्रीब्यूशन वेट्स। यस, दैट इज एक्चुअली, अगर मैं इसको कहूं तो दैट इज एक्चुअली weighted sum which is the expected word that is out from encoder technically. Okay, and alphas are the probability distribution over that expectation. Anyways, okay, then we have this these are attention weights. अब ये सारे attention weights जो हैं ये encoder की outputs के साथ ये BMM function क्या कर रहा है, ये simply उनका alpha 1 times first encoder output plus alpha 2 times second encoder output and so on, ये कर रहा है। ओके, यानी मेरे पास अल्फाज आ गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ऑल दीज फ्रॉम दिस सॉफ्ट मैक्स, और मेरे पास इनकोडर आउटपुट्स भी हैं। यस, तो BMM, दिस फंक्शन BM आप अपना लिख सकते हैं, लेकिन BMM व्हाट इट विल डू, इट विल पिक अल्फा 1 विल मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट इनकोडर आउटपुट plus alpha 2 second encoder output and so on, and finally it will give you one vector which has total number of dimensions jitni ke encoder output ki thi. Is that okay? अगर कोई अल्फा 0 का दिस BMM टेक केयर्स कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है, ये कोई अल्फा 0 है, देन जस्ट मेक सेंस। सो फॉर एग्जांपल अल्फा 1 न्यूरल नेटवर्क की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को 0 कर दे इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, इफ दोस वर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, should I move on? This attention A is now basically the average word
एवरेज कह लें या कंट्रीब्यूटेड, वो वाला वर्ड जो यानी जिन 2-4 वर्ड्स पे फोकस करके एक वर्ड बनाना चाहिए था, दैट इज दैट रिप्रेजेंटेशन. Actually, it is okay, or actually it is correct to say it's an average word, but when we say average word, that doesn't make sense. But mathematically, these are a bunch of vectors जिनकी आपने weighted average लिया, and the resultant thing is also a vector. But what are those vectors? These are words. So what is this average word? तो कोई भी क्या कहते हैं एवरेज की बेस पर वर्ड पिक करेगा कोई भी, किसी भी input 3 या 4, 5 पिक कर सकता है. 50% इसकी कंट्रीब्यूशन, 50% इसकी इंफॉर्मेशन, 50% इसकी, 30% इसकी, 10% उसकी, 5% उसकी इंफॉर्मेशन मिला के एवरेज लेके एक वर्ड निकालेगा. वो वर्ड नहीं होगा. दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ एवरेज वर्ड. आपको अगर मैं कहूँ आई एम सॉरी, इनकी एवरेज लेंगे तो दैट मे नॉट बी अ वर्ड, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी डिस्क्रीट स्पेस. अगर आपके पास डिस्क्रीट, अगर आप डिस्क्रीट वर्ड में हैं एंड यू टेक द एवरेजेस, यू मे नॉट लैंड ऑन अ डिस्क्रीट काउंटर कॉर्नर. ओके, आपकी जो वोकैबुलरी है वो डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट सेट है. इसमें से अगर आप कोई एवरेजेस लेते हैं और एवरेजेस में आप चूंकि कंटिन्यूटी आ जाती है, यू मे नॉट लैंड ऑन अ वर्ड, बट इट हैज सम इंफॉर्मेशन. So this ATTNA is the attended representation of the input. Now this is more kind of better input in practice. It is a better input than the one that is there at the very end of the encoder. Encoder के end पे एक H आता है ना, वो input जाती है ना actually, उससे ये बेहतर है because it is seeing in between times as well. Yes? Great. अब हम करते ये हैं कि हम अपनी इनपुट को, सारी में दोबारा देखिएगा, ये फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सवाल के अकॉर्डिंगली. हम दोबारा अपनी इनपुट पे जाते हैं. जो हमारा वर्ड इनपुट जा रहा था, यानी स्टार्ट में जैसे SOS टोकन जा रहा था या इंटरमीडिएट कोई, उसको हम इसके साथ कंबाइन करते हैं, कंकैटिनेट करते हैं. और ये जो वर्ड है इसकी लेंथ है हिडन साइज विच इज 100. इसकी मैं लेंथ अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा 200 होगी, क्योंकि एक फॉरवर्ड आ रहा होगा, एक बैकवर्ड आ रहा होगा आउटपुट. दोनों को अगर आप कंकैटिनेट कर दें तो 100 and 100 200. सो 200 इसकी, 100 इसकी. सो ये एक टोटल वेक्टर बनेगा जिसकी साइज होगी 300, एंड दैट मेक सेंस बिकॉज हियर यू हैव दिस 300, 3 times the hidden size. Yes? Okay. Okay, and then what you do is you just pass this output from another linear layer. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक linear layer दिखाई थी, ये वाली, जिसमें 300 की इनपुट जाएगी और वो 100 का आउटपुट देगा. That is just a linear layer. उसने उसको linear layer का नाम रखा हुआ है attention combined, आप उसका कोई और नाम रख लें, it's okay. Attention apply हो चुकी हुई है. Yes? After this linear layer, you now have 100 outputs, यानी hidden size की output आपके पास है. और उस इसके ऊपर आप वैल्यू लगा लें. दैट इज योर एक्टिवेशन फंक्शन, इज मोस्टली रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी लीनियर लेयर. यू शुड अप्लाई द नॉन लिनियरिटी. वैल्यू की जगह 10h लगाना चाहते हैं, कोई और लगाना चाहते हैं, दैट इज द आर्किटेक्चरल चॉइस, बट यू हैव टू अप्लाई सम नॉन लिनियरिटी. मेक सेंस? आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग हिडन साइज की इनपुट. आप उसको GRU पे अप्लाई करें. यस, इट विल जनरेट एन आउटपुट एंड इट विल जनरेट अ हिडन स्टेट. ओके, अब आप आउटपुट को पकड़ें और सेल्फ डॉट आउट की अगर आप लेयर देखें, ये सेल्फ डॉट आउट, अगर आप आउटपुट को लें और उसके ऊपर ये लीनियर लेयर लगा दें सेल्फ डॉट आउट, दैट एक्चुअली जनरेट्स द टोटल. इसके टोटल आउटपुट्स उतने हैं जितनी के फ्रेंच के वर्ड्स हैं. उसके ऊपर आप सॉफ्ट मैक्स लगा दें एंड दैट इज योर आउटपुट. दीज आर बेसिकली द प्रोबेबिलिटीज कि कौन सा वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रेंच में टोटल 500 वर्ड्स हैं तो ये 500 लेंथ का एक वेक्टर होगा जिसमें प्रोबेबिलिटीज होंगी कि इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, एंड सो ऑन. और जब ये वेक्टर जनरेट होगा तो आपने चूज करना होगा कि कौन सा वर्ड है मोस्ट प्रोबेबल. तो आप इन प्रोबेबिलिटीज की बेस पे वर्ड चूज करेंगे. मेक सेंस? सो फॉर सो गुड? ओके, एंड देन यू रिटर्न दिस आउटपुट as well as the hidden state as well as the attention weights that you have computed to your decoder. Decoder next word को पकड़ेगा और डिकोड करता जाएगा जब तक एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आता. ये जब हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये हमें रिटर्न वैल्यूज क्यों चाहिए.
But if you have understood this forward function, you're good to go with this. Is that okay? Yes? Online people? Yes, sir. Okay, these are some auxiliary functions. अगर मैं language जी हसनैन, सर ये जो कोड के अंदर अनस्क्वीज हो रहा है फॉरवर्ड में देखिए जी यार, ये पाइटॉर्च के इन फंक्शंस को जिस तरह की डायमेंशंस का डेटा साइज चाहिए ना, यानी कई दफ़ा ऐसा होता है ये जो व्यू है ना, ये एक अटेंशन, इसमें एक डायमेंशन होती है जैसे 1 2 ऐड हुई होती है, एंड वी वांट टू रिमूव दैट डायमेंशन ताकि ये जो अगली लेयर्स हैं उनके ऊपर वो अप्लाई हो सके. दिस इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी इश्यूज ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल अरेज. यस सर मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ ये फॉरवर्ड में जो फिफ्थ लाइन है ये वाली, इससे नीचे वाली ये वाली. ओ ये आपकी आउटपुट थी. यस जो ऊपर से निकली थी. हाँ, इस पे आपने एक लीनियर लेयर लगा दी है, ये वाली एक लीनियर लेयर से गुजारा है. ये आपका सवाल वही है कि मैं एक और लेयर क्यों ऐड करूं न्यूरल नेटवर्क में. जी बस ये लीनियर लेयर से गुजरी है और इसने हिडन साइज की आउटपुट जनरेट कर दी. उसके बाद आपने इस पे वो रैलू शैलू लगा दिया हुआ है. मेक सेंस? ठीक है. ये जो अनस्क्वीज है ये शायद उसको चाहिए कि यार मैंने उसके बाद एफ डॉट रैलू कॉल करना है तो इसको इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, उसके लिए शायद ये कॉल होगा. ठीक. ओके. इंडेक्सेस फ्रॉम सेंटेंस, दैट्स एन एक्सॉलरी फंक्शन. अगर मैं लैंग्वेज दूं, लेट्स से इंग्लिश, और सेंटेंस दूं तो ये उसके इंडेक्सेस मुझे रिटर्न कर देगा. टेंसर फ्रॉम सेंटेंस अगर मैं ये दूं और तो ये टेंसर रिटर्न कर देगा. आई एम मूविंग दिस कोड वेरी क्विकली क्योंकि ये फंक्शन एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे वहाँ पे हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू. टेंसर फ्रॉम पेयर, अगर मैं पेयर दूं तो 2 टेंसर्स दे देगा, इनपुट टेंसर एंड आउटपुट टेंसर. लेट मी जस्ट मूव ऑन बिकॉज आई हैव अ फ्यू टाइम एंड आई हैव टू डिस्कस दिस ट्रेन फंक्शन. Okay, train function, that's the let's go first and see encoder RNN. Let's first design our encoder RNN. Hidden size 128. encoder में और decoder में दोनों में सेम जा रहा है, फर्क कर सकते हैं. मैं encoder RNN जनरेट करता हूं. input language dot number of words, that is my vocabulary size. hidden size 2 device, अगर आप CPU पे हैं तो ऑटोमेटिकली CPU पे चलेगा, अगर आप GPU पे हैं तो ऑटोमेटिकली GPU पे चलेगा. Then I define my decoder RNN, hidden size, output language dot words, जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्टर में रिसीव किया उस तरह से कॉल कर दी. So let me have these two. And then I call training iterations encoder, decoder, and I gave 100 iterations. Make sense? So let me go into the train iters function because that will help us a lot understanding how they are calling encoders and decoders. Yes? So let's go into the train iters. This is the train iters that receives encoder object. It receives decoder object. It receives the total number of iterations and we have a learning rate. Make sense? Okay. Total loss for now is 0. Encoder optimizer, stochastic gradient descent. You could have some other one here, Adam or something. Decoder optimizer, stochastic gradient descent. Training pairs, tensor from pairs. ये कोई random जो है ना, ये indices उठा के इसने. By the way, ये ना normally इसने बड़ा अच्छा कोड लिखा हुआ है इन्होंने. Normally जो stochastic gradient descent होता है ना, उसका जब कोड कॉल करते हैं ना, तो जो stochastic gradient descent ये है कि आप इनपुट में से एक एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल उठाते हैं और ट्रेनिंग एग्जाम्पल उठाने के फौरन बाद आप उसको यूज करने के बाद फौरन ही वेट अपडेट कर देते हैं. लेकिन ये जो प्रूफ है ना कि स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का एक्सपेक्टेड जो एक्यूरेसी है या लॉस, दैट कन्वर्जेस टू द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये उस सूरत में प्रूव्ड है कि अगर आप ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स 1 by 1 उठा रहे हैं ना, यू पिक देम रैंडमली विद रिप्लेसमेंट. ये प्रूफ तब वर्क करता है. ठीक है? यानी आप रैंडमली एक एग्जांपल उठाते हैं, अगली एग्जांपल आपने कौन सी उठानी यू डू नॉट नो, और शायद आप सेम उठा लें, दैट्स ओके.
but you should pick randomly. The proofs, ये जो proof है कि बैच gradient descent को stochastic gradient descent में formalize किया जा सकता है, it requires this shuffling. लेकिन प्रैक्टिस यही देखी है कि लोग फॉर लूप लगाते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 टू फलान, और सारी कंज्यूम करके फिर इसी ऑर्डर में सारी कंज्यूम करके, एंड लकीली इट वर्क्स. सही है. ये इसने क्या किया हुआ है, इट एक्चुअली शफल्स द डेटा. जस्ट अगर आप डेटा को शफल कर लें और फिर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उठाना शुरू कर दें, तो एक चीज तो इंश्योर होगी कि आपने रैंडमली उठा रहे हैं. लेकिन जो चीज इंश्योर अभी भी नहीं हुई वो है रिप्लेसमेंट वाली, क्योंकि रैंडमली तो आप उठा रहे हैं लेकिन वही आप दोबारा नहीं उठा सकते उसे एक एपॉक के अंदर. यस, मेक सेंस. एनीवेज, सो दिस इज नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स, इतने सारे हैं कि आप इस पे आके अगर फोकस करेंगे, नहीं अगर मैंने शफल नहीं किया तो प्रूफ विल नॉट वर्क. वेल, अगर आपने लर्निंग रेट की वैल्यू गलत सेट कर दी तो एवरीथिंग विल नॉट वर्क. देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स. इतनी ज्यादा अननोन चीजें हैं और इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. यू गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग रादर देन काइंड ऑफ, but that doesn't mean I'm saying theory is bad. All am I saying, so far in neural networks, mostly the parameter tuning is a part that is very, very important. Yani theory is one side, parameter tuning is completely a different engineering kind of side, and it is a game changer. Okay. Anyways, okay. Loss function, NL loss for iter is equal to training iters. Training pair, मैंने pair उठाया, input tensor ये, target tensor ये, loss, अब ये train function call होगा, input tensor, target tensor. By the way, मैं आपको बता दूं ये tensor करेगा क्या. ये एक sentence लेके जाएगा और उसके against vocabulary से indices की एक array भेज देगा. ये tensor क्या है, indices की एक array है. ये आप फंक्शन देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा. मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इंडिसेस की अरे मुझे आ जाए. पहला सेंटेंस आई है, दूसरा एम है, तीसरा है सॉरी. तो आई का इंडेक्स क्या है वोकैबुलरी में, एम का इंडेक्स क्या, उसकी एक अरे आ जाएगी. सो सेंटेंस में वर्ड्स हैं, ये इंडेक्स की अरे है जिसको मैं टेंसर कह रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो यू आर जस्ट सेंडिंग द सेंटेंस बट इन द वोकैबुलरी इंडेक्स्ड फॉर्म. दिस इज अगेन अ सेंटेंस, आउटपुट सेंटेंस, इनकोडर, डिकोडर एंड ऑल दीज kind of things. And assume कि ये ट्रेनिंग स्टेप हो चुका हुआ है जिसके अंदर हम अभी जाते हैं. उसके बाद ये जो लॉस है ये अपडेट होगा और आइट्रेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी और टोटल लॉस जो है वो कंप्यूट होता जाएगा. यस, और वो टोटल लॉस आप यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे कि आफ्टर दिस आइट्रेशन इतना लॉस हो गया एंड सो ऑन. मेक सेंस. अब रह गया जी ट्रेन का फंक्शन. सही है जी. और हमारे पास टाइम नहीं है. Will you give me 10 minutes? Okay, thank you. Okay, great. You're so good. Input tensor and target tensor, encoder, decoder, encoder optimizer, decoder optimizer, loss function, max length. All these things has been defined earlier. Encoder init state. अब आपको समझ आएगा वो जो क्लास में initialize hidden state का फंक्शन है वो क्या करेगा. Encoder की जो पहली हिडन स्टेट है, जो पहला वेक्टर है उसको इनिशियलाइज करेगा. दैट इज फॉर ऑल जीरो. इनकोडर ऑप्टिमाइजर जीरो ग्रेडियंट, डिकोडर जो भी गार्बेज वैल्यू उसको खत्म करें. इनपुट लेंथ इतनी है, टारगेट लेंथ इतनी है. ठीक है जी. ओके. इनकोडर आउटपुट्स मैक्स लेंथ इनटू 2 टाइम्स इनकोडर हिडन साइज. मैक्स लेंथ इसलिए कि जो आउटपुट्स हैं सारी की सारी वो ज्यादा से ज्यादा होंगी तो 59 होंगी. सो लेट मी मेक अ 2-dimensional array where each column represents the output at time step 1, time step 2, time step 3. सो ये तो हो गया कि हर कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप. सो मेरे पास 59 कॉलम्स होंगे टोटल एट मैक्स. अब हर कॉलम में जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 2 टाइम्स हिडन साइज क्यों है? क्योंकि एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है. फॉरवर्ड आउटपुट और बैकवर्ड आउटपुट को आप ऐड भी कर सकते हैं, आप कंकैटिनेट भी कर सकते हैं और इनका कोई भी फंक्शन अप्लाई करके एक नई हिडन स्टेट या एक नई इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं. इस कोड में हमने कंकैटिनेट किया हुआ है. सो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी बाई डायरेक्शनल से जो आ रही होगी इनपुट, एक टाइम स्टेप पे 2 होंगी हिडन साइज की, दोनों को कंकैटिनेट करेंगे. सो 1 आउटपुट इनकोडर आउटपुट जो डिकोडर को जाएगी उसका साइज होगा 2 टाइम्स हिडन साइज.
यस, सो ये वो मैट्रिक्स है जो हम पॉपुलेट कर रहे होंगे. ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक एवरीथिंग क्लियर. लॉस इज इक्वल टू 0, EI रेंज ऑफ इनपुट लेंथ. रिमेंबर, एक एक वर्ड को वो पकड़ेगा. इनकोडर आउटपुट, इनकोडर हिडन. अब मैं इनकोडर अप्लाई करूंगा इनपुट टेंसर EI पे. ये एक वर्ड भेजेगा और जो भी इनकोडर की स्टेट है वो भेजेगा, और उसके अगेंस्ट इनकोडर की आउटपुट और इनकोडर की हिडन बाहर आ जाएगी. यस, अब ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि अगर बाई डायरेक्शनल RNN हो तो उसकी आउटपुट को और उसकी हिडन स्टेट को रीशेप कैसे करते हैं. रिमेंबर दैट. ये मैं वो कर रहा हूं, आउटपुट को मैं रीशेप कर रहा हूं ताकि मुझे आउटपुट फॉरवर्ड मिल जाए और आउटपुट बैकवर्ड मिल जाए इस एक वर्ड के लिए. मेक सेंस. और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, दैट इज एक्सप्लेन्ड एट लेंथ इन आवर प्रीवियस लेक्चर. कि बाई डायरेक्शनल हो तो उसकी आउटपुट और इनपुट को, याद है वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस टाइम्स नंबर ऑफ लेयर्स कॉमा. यस, ओके. सो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि इनकोडर की जो आउटपुट है, इनकोडर आउटपुट्स का ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैं पॉपुलेट कर रहा हूं. इसके ith कॉलम में मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कंकैटिनेट करके रख रहा हूं. मेक सेंस. Yes, and I'm doing this in a loop. So once this sentence is over, this actually contains all the outputs in a matrix form. और जहां पे आउटपुट्स नहीं है वहां पे ऑलरेडी जीरोस हैं. यानी एक सेंटेंस है उसकी लेंथ 10 है तो बाकी जो उसके 39 एंट्रीज हैं दे आर ऑल जीरोस. Should I move on? Okay, great. This input loop is over. इनकोडर पूरे सेंटेंस पे लग चुका हुआ है. यस, उसके बाद मैं क्या करता हूं, डिकोडर की इनपुट लेता हूं. डिकोडर की इनपुट में लेता हूं कि SOS टोकन जो है उसका इंडेक्स क्या उठा के लाओ. यस, एंड देन जो इनकोडर की हिडन स्टेट है उसी को मैं रीशेप करता हूं और उसको डिकोडर की हिडन जो है उसको इनिशियलाइज कर देता हूं इनकोडर की जो लास्ट हिडन स्टेट थी. इनकोडर जो है उसकी एक लास्ट हिडन स्टेट आई थी. यस, हिडन स्टेट्स भी दो आएंगी क्योंकि बाई डायरेक्शनल है. मैं एक हिडन स्टेट को फेंक रहा हूँ, बैकवर्ड वाले को सिर्फ फॉरवर्ड वाले को पकड़ रहा हूँ और वो कह रहा हूँ कि इनकोडर की हिडन स्टेट भी वही है फॉर द इनपुट. यस, एंड दैट इज डूइंग दिस स्टफ. ये इसलिए कि मैंने सिर्फ 0 उठाया है, 1 वाला मैंने सिर्फ फॉरवर्ड उठाया, बैकवर्ड वाला फेंक दिया. आई कुड हैव डन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड हिडन स्टेट्स को भी कंबाइन करता एंड भेजता. आई कुड डू दैट. मेक सेंस. इनकोडर की इनपुट भी डिसाइड हो चुकी हुई है, इनकोडर की हिडन भी डिसाइड हो चुकी हुई है. अब हम डिकोडर अप्लाई कर सकते हैं. ये टारगेट लेंथ है जो ट्रेनिंग डेटा का टारगेट लेंथ है. डिकोडर आउटपुट, डिकोडर हिडन, डिकोडर अटेंशन वेट्स इज इक्वल टू डिकोडर. डिकोडर में डिकोडर इनपुट जाएगी, डिकोडर हिडन जाएगा और इनकोडर आउटपुट्स जाएंगी. ये मुझे रिटर्न करेगा डिकोडर की आउटपुट क्या है, डिकोडर की इस वक्त हिडन क्या है और डिकोडर जो अटेंशन बनाई थी वो क्या है, उनके वेट्स क्या है. ओके, मैं इनको यूज कैसे करता हूँ. डिकोडर की जो भी आउटपुट आई है उसमें मैं टॉप के उठा लेता हूँ. टॉप के मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. टॉप, अगर मैं टॉप के अंदर 2 दूंगा तो टॉप 2 इंडिसेस उठाएगा, टॉप 3, टॉप 4. मैं टॉप 1 उठाता हूँ, यानी कि टॉप वर्ड उठाता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. और जो नेक्स्ट डिकोडर इनपुट है वो मैं वो वर्ड उठा लेता हूँ जो, देखें पिछले टाइम स्टैम्प पे जो आउटपुट आई थी उसमें मैंने टॉप वर्ड उठाया और फिर उस वर्ड को मैंने नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे इनपुट बना दिया. मेक सेंस. ओके, और लॉस मैंने डिकोडर आउटपुट और जो टारगेट टेंसर है इन दोनों के दरमियान मैंने लॉस कंप्यूट कर लिया. डिकोडर ने आउटपुट ये दी थी, हालांकि होनी ये चाहिए थी, तो दोनों के दरमियान कोई लॉस होगा. मेक सेंस. ओके, अगर डिकोडर की इनपुट जो डिकोडर को मैं देने जा रहा हूं अगर वो EOS टोकन है तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज कीप ऑन मूविंग. यस, और उसके बाद जब आप पूरे सेंटेंस को देख लें, लॉस डॉट बैकवर्ड, ग्रेडियंट डिसेंट, इनकोडर का ऑप्टिमाइजर स्टेप, डिकोडर ऑप्टिमाइजर स्टेप, ये ग्रेडियंट डिसेंट में स्टेप करेगा और आपका लॉस जो है दैट इज दिस लॉस. ट्रेनिंग कंप्लीट्स. यस, आई स्टिल हैव 3 मिनट्स. अब इनकोडर और डिकोडर ट्रेन हो चुके हुए हैं. अब मेरे पास इनकोडर भी है, डिकोडर भी है. अब मेरे पास टेस्ट टाइम पे एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है, मैं उसका ट्रांसलेशन कैसे जनरेट करूंगा.
इनकोडर डिकोडर ट्रेनिंग डेटा सेट तैयार हो चुके हुए हैं। अब मैंने ट्रांसलेशन शुरू करनी है, डिप्लॉय करना अपना प्रोजेक्ट, अपनी प्रोडक्ट डिप्लॉय करनी है, यानी इंग्लिश के सेंटेंसेस आएँ और फ्रेंच के जनरेट होना शुरू हों। पहले तो मेरे पास टारगेट होता था, मैं लॉस जनरेट करता था। हाउ विल आई मूव नाउ? मेक सेंस? सो लेट मी गो टू दैट लूप। काशिफ, ये एक कोड की पूरी लाइन दिखा देंगे ज़रा, ये फॉर लूप एंड तक नज़र नहीं आ रही थी। कुछ नहीं है, डिकोडर का वो कॉल हुआ है। ठीक है, सही है। ठीक है, असल में ये है, डिकोडर का कॉल हुआ है और असल में ये इनपुट्स हैं। ठीक है, हाँ जी, सही। ठीक है, वेट। ओके, here I have another function evaluate, and I am going to share this code with you, and I left this for you to understand कि अगर मैं encoder और decoder train हो चुके हुए हैं तो this evaluate function will actually take an English sentence and will generate a French translation. यहाँ पे ये deployment code है। अगर मेरा encoder और decoder trained है तो मैं evaluate function को अगर encoder दूं, decoder दूं, English का sentence दूं और maximum length दूं तो ये ट्रांसलेशन जनरेट करेगा। अब आप इस लूप में जाके देखेंगे ये ट्रांसलेशन कैसे जनरेट कर रहा है। इतनी गिवन कि आपने ये पिछला कोड पूरा बिट बाय बिट देख लिया हुआ है, दिस इज नॉट अ बिग डील। यस, फाइनल रिमार्क्स। अगर आपने क्वेश्चन आंसर सेशन का एक सिस्टम बनाना है जिसको क्वेश्चन दिया जाए और वो आंसर दिया जाए, तो क्वेश्चन आंसर का काफी सारा डेटा पेयर्स की फॉर्म में ले आएं और यही डिट्टो मॉडल लगा दें, चलेगा। मेक सेंस? अगर आपने चैटबॉट बनाना है, यानी आपने कन्वर्सेशन एजेंट बनाना है कि आप उससे बात करें तो वो आपको रिप्लाई करे, तो जो होती हैं और जो उनके पॉसिबल रिप्लाईज होते हैं उनके पेयर्स का एक फाइल ले आएं, डिट्टो ये मॉडल लगाएं, चलेगा। फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं? ओह जी, मैं अभी करता हूं अभी। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, आपके दो टॉपिक्स जो हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं एनएलपी में, एडवांस टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूं नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट लेक्चर में। एक होगा टेक्स्ट जनरेशन, यानी ये जो अभी आपने ट्रांसलेशन करनी है ना, जनरेट, इसको ट्रांसलेशन को जनरेट करने के मल्टीपल तरीके हैं। उसमें एक बीम सर्च होती है एंड आई वांट टू कवर दैट बीम सर्च इन द नेक्स्ट लेक्चर। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं डायनामिक एम्बेडिंग एक होती है, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, रीसेंट 3 किस्म के मॉडल्स आए हैं ट्रांसफॉर्मर्स, आई एम गोइंग टू कवर दोज एंड देन कंटेंट फ्रॉम माय साइड विल बी मोर और लेस ओके। आई मीन और कवर करने को जो मर्जी कर लें, बट दैट इज द हाई लेवल कंटेंट दैट वी वुड हैव बीन कवर्ड। उसके बाद आई विल स्टार्ट इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, योर प्रोजेक्ट विल डिसाइड वेदर यू विल पास इन दिस कोर्स और यू विल नॉट। आपने देख लिया हुआ है हम किस तरह से क्लास में गए हैं। आई विल एक्सपेक्ट मच मोर। क्लियर है जी? बहुत शुक्रिया जी। सॉरी